increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions. देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस का। बेसिकली इसका रोल हम डोमेन रेंज में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। आई एम ड्राइंग सम ग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो इन ग्राफ के पैटर्न को जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ e raised to power x, and this is the graph of, सर आपका माइक म्यूट है। okay, just wait. Okay, now see the pattern. ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें पैटर्न को नोट करना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग बेस e ऑफ x, and we have another graph fx equals to sin inverse x. इन सारे ग्राफ में एक चीज है, जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्राफ राइज कर रहा है बेटा, प्लीज टेल मी। In each graph you will notice that graph is rising from left to right. We say that these functions are increasing function. Rising means as the x increases, this height of the graph is increasing. Suppose if this is the x1 value, this is x2, then certainly this height is e raised to power x1, this is e raised to power x2. Can you say that if fx is increasing function, so whenever we have x1 less than x2, can we say that f of x1 is less than f of x2? क्या ये सारे केसेस में हो रहा है? अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, if I take any point here, say x1, then this height is f of x1, and similarly if this point is x2, then this height is f of x2. So we can certainly say that if fx is increasing, in fact in this case function is strictly increasing. This is strictly increasing. The function is keep rising from left to right. Okay, so you can say that whenever x1 less than x2, for all x1 x2 belongs to some interval I, then f of x1 is less than f of x2, then fx is strictly increasing. So in every case, even if you can say in the graph of sin inverse x, this height is keep increasing. Now I'm drawing another graph, just try to understand it. Suppose the graph of the function is something like this. Now what exactly happening here? The graph is rising, keep rising here, and see that at this point onward the graph becomes stationary, stable हो गया है. So these heights are equal. Can we say like that? So here, if here is the point x1 and x2. In this case, you can say that the x1 height, that is f of x1 height, is less than f of x2 height. But when we are here, say x1 x2, so in this case these two heights are equal. Here f of x1 equals to f of x2. So we say that this is a non-decreasing function or increasing function. So what we are observing here, that is if x1 less than x2, implying that f of x1 is less than or equals to
f of x2, then fx is increasing function, or you can say that non-decreasing function. This is increasing function or non-decreasing function. Now I'm drawing few more graphs. See, if I draw the graph like this, so this is the graph of fx equals to e to the power minus x. Now you can see that this graph is falling from left to right. The graph is falling. So what we are observing here, these heights are keep decreasing. So the as x increases, the y values are, that is ordinates, is decreasing. Are you getting this? So we can say that if this height is say x1 and this is x2, so here the inequality will reverse. So that is whenever x1 less than x2, implying that f of x1 is more than f of x2. So this is the case of strictly decreasing function. So it is strictly decreasing function. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Now if the graph of the function is something like this, say suppose graph is now here stabilized and then further decreasing. So you can say that here the heights are decreasing, but at one point this height becomes equal. So we call that this function is a decreasing function or non-increasing function. So if x1 less than x2, implying that f of x1 is greater than or equals to f of x2, then fx is your decreasing function. Now let us understand it, the sign of the derivative here. Now see what is going to happen. One by one, suppose if I consider these graphs again. See, if I start drawing the tangent at these points, हर एक पॉइंट पे मैं ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ लाइक दिस. किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज एनी पॉइंट, सो दिस टेंजेंट्स आर मेकिंग acute angle. Please tell me beta, these thetas are acute, and you know that the slope of the tangent is derivative. So and we also know that the slope of the line is given by m equal to tan theta, and theta is acute, so this is more than 0. So in case of strictly increasing function, we can say that the derivative is positive for all x belongs to the domain of the function. Is that okay? Please do reply. Now Yes. now if you consider say this graph, if you start drawing the tangent at these points, say suppose at this particular point I draw a tangent, then you can say that this theta is obtuse angle. So you can say that in this case tan theta will be negative, so derivative will be negative, dy by dx will be less than 0. So for a strictly decreasing function, the derivative is negative. Now what about the case when the function is say you can say that here the function is, now if I start drawing tangent here, see here is the tangent like this. Are you getting this? Now and here also if I draw the tangent like this, so here theta is either take the value 0, or you can say that obtuse angle. So we can say that here derivative is less than or equals to 0. So this is the case when the function is decreasing one. Similarly, if I consider another case, सॉरी मैंने ये तो फंक्शन भी हमारा इंक्रीजिंग ही था, मैंने डिक्रीजिंग टेंजेंट हमने इस साइड से हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ये सारी हमारी टेंजेंट जो आएंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा. सो अगर यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो इन नट सेल व्हाट वी से दैट हम फंक्शन का नेचर किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे,
उसके डेरिवेटिव के साइन के ऊपर, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और आराम से मुझे नेचर बताइएगा। पहला एग्जांपल है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। वो मुझे बता सकता है इस फंक्शन का नेचर क्या है? इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? प्लीज डू रिप्लाई। The increasing. बेटा इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। रीजन बता रहा हूँ। एफ डैश एक्स आपका ठीक है 3x² आया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट इट विल टेक अ 0 वैल्यू एट ओनली एट वन पॉइंट। देखिए जब तक आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? जहाँ डेरिवेटिव 0 है। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स को एक इंटरवल नहीं बनाते हैं तब तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। अब एक अगर हम बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो हमें ऐसे 2 पॉइंट मिलने चाहिए जहां हाइट या इंटरवल में वो इंटरवल मिलना चाहिए जहां फंक्शन की हाइट बराबर हो। आर यू गेटिंग दिस? अगर मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि अगर हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अगर किसी इंटरवल में इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स है और वो इंटरवल नहीं बना रहे और जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0, तो तब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप ग्राफ को देखिए, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है लाइक दिस। बेसिकली अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे ये जो ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। सो वी क्लेम दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इसी टाइप का, आराम से देखिएगा। एफ एक्स दे रखा एक्स प्लस कोस एक्स, इसका नेचर चेक करना है। डोमेन क्या है इसकी? व्हाट इज द डोमेन? ऑल रियल नंबर। अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस साइन एक्स। अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैन वी से दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? अब मुझे एक बात बताइए, साइन एक्स हमारा ये 0 कब होगा? जो साइन एक्स 1 होगा। तो साइन एक्स 1 कहाँ कहाँ आएगा? π/2 पे आएगा। आर यू गेटिंग दिस? देन उसके बाद 5π/2, यानी कि x मस्ट बी इक्वल्स टू 4n + 1 ऑफ π/2। लेकिन ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दे आर इनफाइनाइट इन मैनी नंबर, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग द इंटरवल। दे आर डिस्क्रीट और नॉट? एक साथ तो नहीं ना सारे पॉइंट्स? प्लीज टेल मी। Yes, sir. So therefore this function is strictly increasing. Are you getting my point? So here n belongs to z, so you can say that, मैं लिख देता हूँ, f dash x is equals to 0 at infinite point, but they are not forming the interval. They are not forming an interval, that is points are discrete. तो इसका मतलब क्या हो गया? तो हमारी ये जो डेफिनेशन है कि x1 लेस देन x2 विल ऑलवेज होल्ड्स ट्रू हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? प्लीज टेल मी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। आपके पास ग्राफ में 2 कंपोनेंट है, एक x है और एक cos x है। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू x लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी आपकी। इस लाइन के ऊपर आपको cos x का ग्राफ ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसे ग्राफ बनेगा, इनफैक्ट लाइक दिस। तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, बट कोई एक वी डोंट हैव सो मेनी पॉइंट्स, खाली ओड मल्टीपल आएंगे, इस टाइप से आएगा। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स, एक पॉइंट पे टेंजेंट जो है अगर आप कहेंगे तो ठीक है, लेकिन इंटरवल नहीं बनेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम्स। ये तो मैं खाली एक डिस्कशन के तौर पे कर रहा था। अब मुझे बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका नेचर क्या कहेंगे आप?
अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बताएंगे जरा मुझे। इसमें तो इंटरवल बना रहे हैं बेटा पॉइंट्स, प्लीज टेल मी। हाँ जी, अगर ये x1 ले लूँ, ये x2 ले लूँ, हाइट तो बढ़ रही है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। दीज हाइट्स Yes. आर, बट लेकिन आप देखिए हाइट बराबर भी तो आ रही है यहाँ पे कितने सर, तो दे आर फॉर्मिंग द इंटरवल। सो इनफैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात क्लियर हुई बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, प्लीज डू। Okay, sir. Okay. Yes. Now next we have fx equals to x raised to power 1 by 3। इसके बारे में क्या कहेंगे? What is the domain of this function? अच्छा एक बात देखिएगा, कैन वी ड्रॉ इट्स ग्राफ? देखो एक इंटरेस्टिंग तरीका बता रहा हूँ कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका। पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। इट इज 1 by 3 x raised to power minus 2 by 3। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी what is f dash Yes, 0? sir. f dash 0 is infinite। तो f dash 0 infinite है, तो इसका मतलब क्या है? दिस हैज वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग तो है ये, लेकिन ओरिजिन पे इसका वर्टिकल टेंजेंट आएगा ऐसे। क्योंकि जब x 0 आएगा तो और ये ग्राफ ऐसे यूं जाएगा। इज दैट ओके? द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये वाली बात बेटा? हाँ जी। Yes. सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक और मैं ग्राफ फंक्शन ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। इसके बारे में क्या कहोगे? व्हाट यू विल से अबाउट दिस फंक्शन? देखो एक तो ग्राफ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। जब x लेस देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला का ये वाला पार्ट आ जाएगा ग्राफ में। इज दैट ओके? एंड y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो लाइन का ये वाला पार्ट। तो ग्राफ इज फॉलोइंग। प्लीज टेल मी, डिक्रीजिंग फंक्शन है? अगर Yes, sir. अगर ऐसे नहीं पता पड़ रहा तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2x minus 1। Now please tell me when x is less than 0, this 2x is less than 2x is also less than 0, and this is, so we can say that f dash x is less than 0 for all x belongs to the domain. Please tell me the function is strictly decreasing. Is that okay? Sir, पर ये differentiable function नहीं है तो तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन एक बात बताओ ना, इस पीस वाइज फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या फंक्शन का नेचर नहीं होगा? क्या डिफरेंशियबिलिटी ही डिसाइड करेगी? ग्राफ से भी हम डिसाइड कर रहे हैं, और डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे कर रहे हैं इसका? पीस वाइज। ठीक है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट लेकिन हम उस इंटरवल में तो उसका नेचर चेक कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये तो डिफरेंशिएबल अपनी इस वाली डोमेन पे पॉलिनोमियल है। इज दैट Yes. ओके? और माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो ये डिफरेंशिएबल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल Yes, मी। sir. तो नेचर तो हम उसका पता करेंगे ना बेटा। अनदर एग्जाम्पल, सपोज माई फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू e raised to power minus x when x is less than equals to 0 and minus x square when x greater than 0। so what you will say about this function? एक तो ग्राफ से पता कर सकते हैं, e raised to power minus x ऐसे ग्राफ होता है। इज दैट ओके? माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, डाउनवर्ड पैराबोला। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो फंक्शन क्या है? फॉल कर रहा है ना। क्या है फंक्शन? डिक्रीजिंग। तो वैसे भी अगर मैं डेरिवेटिव से भी पता कर सकता हूँ, क्या आएगा? माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2x व्हेन x ग्रेटर देन 0।
So clearly f dash x is less than 0 for all x belongs to the domain of function. So the function is strictly decreasing. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. अभी तक हमने ये जो फंक्शन थे सारे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का हमने चेक किया था कि फंक्शन कैसा है. तो ऐसा नहीं है कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, उस डोमेन किसी एक पॉइंट पे, लेकिन क्या है कि हम उसको फंक्शन हमें पीस वाइज मिल रहा है तो हम पीस वाइज ही उसका नेचर जज कर रहे हैं. इज दैट ओके? Okay, sir. ठीक है ना. तो वी हैव इन्फाइनेटली मैनी फंक्शन, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट बेटा फंक्शन का जो ग्राफ है जो बना होगा उसका एक वो नेचर तो रहा होगा ना, ठीक है. तो हम बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हैं, बट लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया, द साइन ऑफ द डेरिवेटिव इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. Oh, yes, sir. अब एक बात बताओ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमारा डिसकंटिन्यूअस था, फिर भी वो कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, है ना. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनता कि दैट डिफरेंशिएबिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट. नाउ we define monotonic function. What do you mean by monotonic function? एक तो मोनो का मतलब होता है एक जैसा नेचर होना. मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स द फंक्शन आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. कोई एक नेचर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन. तो कुछ मोनोटोनिक फंक्शंस जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, उनका नेचर चेक करवाते हैं. पहला है f(x) is equals to e raised to power x plus cos x, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. मुझे बताइए इस फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा है? प्लीज टेल मी. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आई विल बी हैविंग e रेज टू पावर x माइनस साइन x. अब मुझे बताइए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग. तो e रेज टू पावर x ग्रेटर देन e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. आर यू गेटिंग दिस बेटा? और Yes, sir. साइन एक्स क्या होता है आपका, साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1. तो कैन वी से दैट दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. बट एक बात बताइए, क्या इसका साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? मुझे ये बताइए, कहीं पे भी क्या डेरिवेटिव 0 होगा? क्या ऐसा कोई पॉइंट बता सकते हैं जहां पे e रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू साइन x आ जाए? प्लीज टेल मी. नहीं आएगा. रीजन बता रहा हूं. साइन x का ग्राफ अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ग्राफ आपका ऐसे यूं चलेगा. आर यू गेटिंग दिस? और e रेज टू पावर x का ग्राफ, क्योंकि x हमें डोमेन दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्राफ यहां से चलेगा. आर यू गेटिंग दिस? सो दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट. और वैसे भी ग्राफ से अगर आप देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये e रेज टू पावर x, तो वी कैन से दैट e रेज टू पावर x माइनस साइन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. सो हियर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्लियर हुआ? नाउ लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम. सर ये मोनोटोनिक कैसे है, मतलब ये समझ नहीं आया. मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या कोई एक नेचर होना चाहिए. डुअल Okay. नेचर है. डुअल नेचर होगा तो मोनोटोनिक नहीं होगा ना. आर यू गेटिंग दिस? सर अगर डुअल नेचर का एक बार एग्जांपल बताना, समझ नहीं आ रहा. लो एग्जांपल ले लो. एक काम करिए, f(x) इक्वल्स टू साइन x ले लीजिए और आप x ले लीजिए, इंटरवल ले लीजिए 0 से 2 पाई. अब आप बताइए कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक नहीं है? है क्या मोनोटोनिक? यस, समझ आ गया. ओके. तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. हम बेसिकली मोनोटोनिसिटी तो रीड कर, इनका स्टडी कर रहे हैं कि फंक्शन का एक नेचर हमें, अगर देखिए
और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं फंक्शन ले लूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ले लिया मैंने। अब अगर इसका ग्राफ बनाए, क्या है फंक्शन, मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है, आप बताओ। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो 2x आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा जब x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा जब x नेगेटिव होगा। तो बेसिकली क्या है, इट इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इन इट्स डोमेन। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन Yes. अगर मैं कह देता कि 0 टू इन्फिनिटी, तो ये मोनोटोनिक हो जाता। या मैं ऐसे कह देता -∞ टू 0, तब भी मोनोटोनिक हो जाता। समझ में आई बात? Yes, sir. नाउ let us consider one more example. Suppose my function is fx equals to sin x plus tan x minus 2x, where x belongs to the open interval 0 to pi by 2. What is the nature of the function? हम पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जज करते हैं। sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x। इसका क्या आएगा, sec square x minus 2. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताइए अगर x हमारा 0 टू पाई बाय 2 में बिलोंग कर रहा है, तो cos x की वैल्यू ज्यादा होंगी या cos स्क्वायर x की वैल्यू बड़ी होंगी? रिप्लाई करिएगा, कौन सा बड़ा होगा? प्लीज डू रिप्लाई। cos x बड़ा होगा क्योंकि Cos X. वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में स्क्वायर करेंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो कम होगी ना। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. कह सकता हूँ ना ये वाली बात में? हाँ जी, ओके। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है ये, तो कैन वी से दैट cos x plus sec square x minus 2 is more than cos square x plus sec square x minus 2, इससे बड़ा होगा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब ये ऐसा क्यों किया, अब मुझे बताइए ये किसका होल स्क्वायर है, cos x माइनस sec x, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, स्क्वायर हो गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे देखना कि दोनों 0 कहाँ होंगे। cos x माइनस sec x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, प्लस माइनस 1। अब x क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पे, 0, पाई, लेकिन इस इंटरवल में तो एक ही पॉइंट लाई कर रहा है 0, और जो कि वो भी नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. So in fact, for all x belongs to 0 to pi by 2, f dash x is strictly greater than 0. So function is strictly increasing. Is that okay? अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इस फंक्शन की रेंज बताओ क्या आएगी, कैन यू टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज f। देखो, अगर आपको पता पड़ गया फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इस फंक्शन की रेंज निकालने का शॉर्टकट ये बन जाता है। अगर आप ये जानते हो, यानी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 0 पे क्या आएगा, इंटरवल क्या आपको डोमेन क्या दे रखी, 0 से पाई बाय 2, तो 0 पे क्या आएगा उसका राइट हैंड लिमिट। आर यू गेटिंग दिस, कोमा, और पाई बाय 2 पे कौन सा लिमिट आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। आर यू गेटिंग दिस? अब बताइए 0 पे लिमिट क्या आएगी इस फंक्शन की, 0। पाई बाय 2 पे लिमिट क्या आएगी, क्योंकि 10 पाई बाय 2 टेंड्स टू वेयर, इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग दिस बेटा? Yes, sir. So the range is 0 to infinity. Is that okay?
तो इस तरीके से हम फंक्शन का नेचर जज कर सकते हैं। ओके, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा, समझिए। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x plus 2002, then which of the following is true? Number 1, f of 1000 is more than f of 1001. Number 2, f of 1 upon 2000 more than f of 1 upon 2001. And option number 3, f of x minus 1 more than f of x minus 2. Option number 4, f of 2x minus 3 more than f of 2x. अब उसने कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, लेकिन उसको बनाना कैसे पड़ेगा वो ध्यान से देखिएगा। हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 100। इज दैट ओके? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर इज 4 माइनस 4 ac करूंगा तो अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका साइन क्या आएगा फंक्शन का? इट विल बी मोर देन 0। प्लीज टेल मी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था मैंने। हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। तो फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अगर फंक्शन, अब मुझे बताओ 1000 इज लेस देन 1001 है ना? तो एफ एट 1000 मस्ट बी लेस देन एफ एट 1001, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है ना? कह सकता हूं। अब बताओ 1 अपॉन 2000 इज मोर देन 1 अपॉन 2001। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। यस। तो अब बताओ मुझे, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ एट 1 अपॉन 2000 विल बी मोर देन एफ एट 1 अपॉन 2001 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन? अगर सेकंड ऑप्शन को हम चेक करें तो क्या कहेंगे? क्या x माइनस 1 x माइनस 2 से बड़ा होगा? प्लीज टेल मी। यस होगा। तो f ऑफ x माइनस 1 विल बी मोर देन f ऑफ x माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा। आर यू गेटिंग दिस बेटा? नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट ऑप्शन? 2x माइनस 3 क्या आएगा? लेस देन आएगा ना 2x से, तो f ऑफ 2x माइनस 3 मस्ट बी लेस देन f ऑफ 2x, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सो दे आर ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है आप बेटा? यस सर। तो देखिए, प्रॉब्लम के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। बगैर लॉजिक के क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस लॉग बेस e ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसकी डोमेन कोई बता देगा मुझे? प्लीज डू रिप्लाई। अच्छा, x की डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर। कोट इनवर्स x की डोमेन सारे रियल नंबर। अब इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे एक चीज बताइए, इसकी डोमेन मैं कैसे निकालूंगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0? अगर मैं ऐसे लेके चलूं तो प्लीज डू रिप्लाई। यस सर। और स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। आर यू गेटिंग दिस? अब रूट एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? मोड एक्स। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। यस सर। अब आप मुझे ये चीज बताइएगा,
अगर x नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स आएगा, लेकिन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो इट विल ऑलवेज मोर देन दिस। प्लीज टेल मी, अगर x पॉजिटिव होगा तब भी ये इससे ज़्यादा ही होगा। तो वी कैन से दैट रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सो द डोमेन इज R। समझ में आ गई बात? yes क्लियर? sir, तो इसका मतलब मुझे इसकी मोनोटोनिसिटी कहाँ देखनी पड़ेगी? इसकी डोमेन में। यही अपनी डोमेन में इसका क्या बिहेवियर है। आर यू गेटिंग दिस? तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2। कोट इनवर्स का क्या आएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग का कर लेते हैं। दिस विल बी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में 2x भी आएगा और -1 भी आएगा। इज दैट ओके? प्लीज प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, Ye- यही आएगा ना? तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। अगर मैं माइनस साइन का एडजस्टमेंट करूँगा तो ये कैंसिल होकर यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। प्लीज़ डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, yes sir, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज़ टेल मी, यही आना चाहिए। yes sir, ओके। डेरिवेटिव में कोई गड़बड़ तो नहीं करी है? एक बार चेक करिए। हाँ जी बेटा, जो हमने डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो वो सही है। मैं वही चेक कर रहा हूँ बेटा एक बार। हमने पहले लॉग का ही किया ना, ठीक है, फिर हमने रूट का किया, ठीक है, फिर 2x, और फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है ये इस टाइप से। कैन वी सिंप्लीफाई इट फर्दर? 2 माइनस, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस, इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। yes sir, अब अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 2 माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ तो 2, ध्यान से देखिएगा, वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे आएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है वाली बात? हाँ जी, yes sir, ओके। क्या हम इसका कुछ और बेटर सॉल्यूशन नहीं कर सकते थे? मैं वही देख रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी जा रही है। जो हमने यहाँ डेरिवेटिव किया है, एक मिनट रुकिएगा।
सर आप वो रूट वाला कंपोनेंट वैसे काट भी सकते थे कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में। कहाँ पे? वो जो 3/2 बना देते तो उसका रूट वाला 1+x² काट सकता था। हाँ वो तो हम काट सकते हैं, मैं लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आ गया हमारा, है ना? हम्म। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आ गया है, पर वैसे तो मैं यहाँ इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की बजाय मैं यहाँ से भी इसको हैंडल कर सकता था। डोमेन हमारे सारे रियल नंबर हैं, है ना? आर यू गेटिंग दिस? डोमेन हमारा सारे के सारे रियल नंबर है। अब एक बात बताओ, ये जो क्वांटिटी है 1/1+x², ये किसके बीच में लाई करेगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 1। ये लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएगा ना? यस सर। और क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, ये आ गया। एंड व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट? अगर स्क्वायर रूट लूंगा वो भी इसी के बीच में आएगा? प्लीज टेल मी। तो यहीं से आ जाएगा ये तो अब मुझे बताइए, इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों का सम क्या आ सकता है? दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है? तो कैन वी से दैट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? प्लीज टेल मी। इक्वल्स टू 0 कहाँ आएगा? खाली x इक्वल टू 0 पे एक ही पॉइंट है, तो फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसे पता पड़ा? हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का रेंज निकाल लिया कि ये फंक्शंस कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, ठीक है? तो उसके बेसिस पे हमने इसको जज कर लिया। नाउ लेट अस डू वन प्रॉब्लम। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉजिटिव, डिफरेंशिएबल एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शंस। देन which of the following are always true? Number 1, fx raised to power gx always increases. Number 2, fx raised to power gx decreases if fx is less than 1. Okay. Number 3, if fx raised to power gx increases, then fx is more than 1. Number 4th option is if fx is more than 1, then fx raised to power gx increases. ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? अब पूरे क्वेश्चन में किसका डिस्कशन हो रहा है? एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स का हो रहा है। तो और एक और चीज देखिए, एफ और जी दोनों के दोनों पॉजिटिव फंक्शन भी हैं और डिफरेंशिएबल फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मुझे क्या करना चाहिए? y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ, कैन वी टेक लॉग? यस, क्योंकि पॉजिटिव दे रखे हैं दोनों फंक्शन। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। प्लीज डू रिप्लाई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आएगा y डैश ओवर y इज इक्वल्स टू g डैश x इंटू लॉग एफ एक्स प्लस f डैश x ओवर एफ एक्स इंटू जी एक्स। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। यस सर। तो कैन वी राइट माई y डैश विल बी, y को इधर लेके जाऊंगा तो एफ एक्स की पावर जी एक्स आएगा, एक तो आएगा ये, और साथ में g डैश x आएगा इंटू लॉग एफ एक्स आएगा, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। अब यहां से कुछ कंक्लूड करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले तो बताइए। एफ एंड जी आर पॉजिटिव, यानी कि मेरे पास क्या आ गया? एफ और जी दोनों पॉजिटिव है, तो एफ की पावर जी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। और क्या दे रखा है?
एफ और जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यानी कि इनके डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गए। प्लीज टेल मी। यस सर। अब मुझे बताओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और ये सारा रेशो ये पॉजिटिव है ना? नेचर क्या डिसाइड करेगा? लॉग एफ एक्स। प्लीज टेल मी। यस सर। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको लॉग का ग्राफ याद है तो क्या फंडा होता था? लॉग एक्स कैसे क्या करता था भैया, बताएंगे जरा? अगर ये फंक्शन है आपका, आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। यस सर। अगर आप यहां से देखें, ये 1 पे इंटरसेक्ट करता था ग्राफ, ठीक है, log base e of x। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अगर इस केस में अगर मैं, अब यहाँ हमारा एफ एक्स है, अगर एफ एक्स मोर देन 1 होगा, एफ एक्स विल बी मोर देन 1, तभी तो log डिफाइन होगा। प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। अगर एफ एक्स लेस देन 1 हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, log डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो क्या होना पड़ेगा? सो यू कैन से दैट अगर अब एफ एक्स हमारा मोर देन 1 हो गया तो log बेस ई ऑफ एफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो ग्राफ को देखते हुए। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कैन वी से दैट एफ एक्स मोर देन 1 देन एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स इज इंक्रीजेज? कह सकता हूँ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट? प्लीज टेल मी। अब यस सर। अब देखो, ये नहीं हो सकता किसी को, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या फर्क है। उसने कहा कि इफ एफ एक्स जे इंक्रीज देन एफ एक्स, ऐसा नहीं कह सकते बेटा। समझ में आ रही बात? अगर एफ एक्स मोर देन 1 होगा तभी तो उसका लॉग डिफाइन होगा, ठीक है? तो ये अब यहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है, तो लेकिन ये कंडीशन तो एफ एक्स मोर देन 1 किस बेसिस पे आ रही है? क्योंकि ये डिफाइन होगा, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को देखना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी। बाकी इसमें, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में भी, क्योंकि एफ एक्स लेस देन 1 होगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। और ये दोनों में कंफ्यूजिंग ये था कि बच्चा थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड को या फोर्थ में से किसी एक को टिक कर देता, लेकिन उसको कंडीशन को समझना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ जी। आई होप इट इज क्लियर बेटा। यस सर। तो अभी एक क्लास और मैं लूँगा जिसमें हम एक उसमें कराएंगे क्वेश्चन सेपरेटिंग द इंटरवल्स, और कुछ ऐसे फंक्शंस का भी हम बिहेवियर जज करेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, और हम उनका नेचर पूरा का पूरा सिर्फ ग्राफ से जज करेंगे, ठीक है ना? एक क्लास में और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप यहाँ से कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर चेक करते हैं क्वेश्चन से। समझ में आए सारे क्वेश्चन बेटा? यस सर। ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग हियर। तो आई विल ट्राई टू टेक वन मोर क्लास, ठीक है? कल या परसों में कोई एक क्लास और लूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। 2 या 3 क्लासेस लगेगी मैक्सिमम एंड मिनिमम में, ठीक है? उसके बाद